Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So dear friends, ଗତ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ କୋଉ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢୁଛ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯୋଉ ଭୋଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଓକେ। ସୋ ବିକମ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କର କୋର୍ 1 ପେପର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତାର ଆଜି କିଛି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବାବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ରିମେନିଂ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଦେଖ ପିଲା, ତମ ପାଇଁ ମେହନତ କରାଯାଉଛି, ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ନ ପଢ଼ିଲେ କେତେ କେୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ ହେଲେ ପିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସିରିୟସଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପଟେ ତମ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମେହନତ କରୁଛି, ସେପଟେ ତୁମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୋ ତମେ ବି ଟିକେ କସସ୍ ହେଇକି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ବେଟର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ପିଲେ, ଓକେ। ଏହା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ସେ ଜାରି ରଖ। ଏନିୱେଜ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2-3 ମାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ୟାର ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି କମର୍ସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ନାଁରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି କମର୍ସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ତ ସେଠାରେ ମୁଁ ୟାର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଓକେ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ, ବିକଜ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ତ ଯଦି ତୁମେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଓକେ। ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର 2-3 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 1। ସୋ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେସିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, +2ରେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ସେଟା ତୁମର ପୁରାପୁରି ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ 30-40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିବା ପ୍ରୋବାବୁଲ୍, ତାହେଲେ ବି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବାହାରି ପାରିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି ପିଲେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର 1, ଏଲାବୋରେଟ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ନେକ୍ସଟ, what is cash basis of accounting? Next, what is accrual basis of accounting? ए दुटा बेसिस रे गोटे आसी जाए हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या भी टिके पढ़ी नब। नेक्स्ट, व्हाट इज बुक कीपिंग? आम जाने बहुत थर ये क्वेश्चंस रिपीट होती एग्जाम रे, बुक कीपिंग कौन, अकाउंटिंग कौन, दुटा भीतर डिफरेंस कौन, जोटा मुझे लंग क्वेश्चन भी रखी। तो बुक कीपिंग रो मीनिंग टिके पढ़दब और डेफिनेटली अकाउंटिंग रो मीनिंग भी पढ़ी जीव, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, आमर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रही जहाँ को कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन रे बाइफर्केशन करा जाइछि। तो जेते गुडी भी आमर कॉन्सेप्ट्स गुडी को रही पाखापाखि 10टी कॉन्सेप्ट्स रही पिले, सबको टिके टिके भल भाव में पढ़ी के जीव। ता भीतर किछिटा कॉन्सेप्ट्स मुझे एग्जांपल पे लिखी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फाइन। नेक्स्ट, कन्वेंशन भीतर जोटा मैक्सिमम टाइम परीक्षा रे रिपीट होता है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ अ कंजर्वेटिज्म, या को टिके देखिके जीव। नेक्स्ट, what is accounting equation, +2 पाठ है सब, फाइन। नेक्स्ट, what is mean by journal? तो एगुड़ाक कहवाक पड़ोनी, ऑलरेडी तुम्हें +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भितर सब पढ़ी आसीच, कवर अप करके आसीच। नेक्स्ट, what is ledger? नेक्स्ट, what is trial balance? नेक्स्ट, is the journal a book of original entry? तो जर्नल को कौन आम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहबा कि गोटे क्वेश्चन पचरा गला। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेनसेटिंग एरर? तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर गोटे तुमको मिल जाव। नेक्स्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आमर एरर अच्छी, कंपेनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, सबटी को टिके आखि मार देकी जीव, माने नजर पकई देकी जीव। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक? तो कैश बुक प्रिपेयर करबा पे आम पाखरे जो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अ पेटी कैश बुक एक्चुअली, ओके, पेटी कैश बुक प्रिपेयर करिवार बेले आमर गोटे इम्प्रेस सिस्टम अच्छी, सेटा कौन एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर कौन, जोटा कि एवं एडी कही दीटा एग्जांपल दियो को ट्रांजैक्शन को भलिया ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड करिबा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एंड परचेज बुक। तो डेफिनेटली हमको सब्सिडियरीज बुक को टिके भल भाव में ओवरलुक करार अच्छे पिले प्लस टू फर्स्ट ईयर में सब्सिडियरीज बुक बा सब जर्नाल जोड़ाक सब पढ़ी 8 प्रकार सब्सिडियरीज बुक विषय पढ़ी ना पढ़ी मन पड़ुची परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल जर्नल प्रॉपर कैश बुक एटा सब पढ़ी आम ओके कैश बुक भितर पुणी सिंगल कलम डबल कलम ट्रिपल कलम पेटी कैश बुक एटा सब आम पढ़ी आसे ताकू टिके ओवरलुक करके जीव एते भास्ट अच्छी ना पिले 2 एंड 3 मार्क काढ़ा टिके क्वाइट इम्पॉसिबल बा डिफिकल्ट टिके हो जाए तथापि मुझे चेष्टा करा मत लगे इंपोर्टाट मुझे देती केते दूर 2 मार्क 3 मार्क आसो ता भी कहवाटा संभव नुह बट पढ़ी की जाओ। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 जोटा कि आमर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग दीटा को मिसेकी अच्छी तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रू कम क्वेश्चन रखी डेप्रिसिएशन रू अधिका रखी ओके सो व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहले कौन बुझ। नेक्स्ट व्हाट इज इंड एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन। नेक्स्ट एक्सप्लेन आईएफआरएस जोटा आगु इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थिला एएस टा चेंजेस है कि इंड एस हो गला आईएएस टा चेंजेस है कि आईएफआरएस हो गला जोटा कि कौन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेन एक्सबीआरएल तो युवा को टिके भल भाव पढ़ी जीव या बाद डिटेल क्वेश्चन भी आसी पारे बट बेसिक जो क्वेश्चन अराइज हो पार ये टाइप क्वेश्चन हो पार मत लगुच। नेक्स्ट AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग या विषय टिके लिखा पड़ो। नेक्स्ट AS9 जोटा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन या ऊपर टिके लिख बेले बेले गोटे पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पिले पचारि दिए। नेक्स्ट व्हाट यू मीन बाय बिजनेस इनकम कहले कौन बुझ मुझे स्पीड एपाई कहूँ जस्ट तुमको क्वेश्चन गुड़िक शुणवार अच्छी एटी किसी बुझीबार ना ओके। नेक्स्ट व्हाट इज होल्ड ऑन गाइस व्हाट इज डेप्रिसिएशन कहले कौन बुझ 3 फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्लस 2 रे पढ़ीचे एवं एटी आउ टिके देखिकी जीव कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन ओके जो फिजिकल एंड फंक्शनल कजेस रहउतला ताकू टिके देखिकी जीव। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड तार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तार मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देखिबो एक्सप्लेन चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जोटा कि ग्रेजुएशन रे हमें नुआ सिखिले स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग तो ऑलरेडी प्लस 2 रे पढ़ीथिले ग्रेजुएशन रे हमें चेंज ऑफ मेथड टाको सिखिले ओके। नेक्स्ट एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहले पिले कौन बुझ एंड लास्ट नॉट बट द लिस्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 2 दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग तो यार फीचर्स विषय किसी टिके लेख ओके। तो मत लगला यूनिट 2 रु एतिक टिके प्रोबेबल क्वेश्चन आसीबार चांसेस रही तुम जब या बाद भी किसी पढ़ुच बा तुम पाखे जब कौन प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी ताकू टिके ओवरलुक करके जीव बिकज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट क्वेश्चंस आसे एटा तो प्लस 2 बोर्ड एग्जाम नुह जो ऑल ओडिशा गोटे वर्ष गोटे टाइम गोटे डेट रे गोटे प्रकार क्वेश्चन आसो सेमती तो ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम डेट डिफरेंट था क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप आसे तो मे बी या भितर किसी क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर पड़ी जाइए सो दैट ए वर्ष न आसीपे मे बी एटा तुम आसबार चांसेस थाई पारे ओके तो ये किसी कहीहबनी ग्रेजुएशन रे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 को आसीबा दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन प्रथम देख कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन तार एग्जांपल। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन तार एग्जांपल। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन तार एग्जांपल ओके। सो कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या टिके जोड़ा प्लस 2 पढ़ी टिके ओवरलुक कर देकी पिले जीव। नेक्स्ट पार्टनरशिप चैप्टर को आसिले पढ़ी पार व्हाट इज पार्टनरशिप पढ़ी पार 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी पार। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑफ अ पार्टनरशिप देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देन पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहले कौन बुझुच बा व्हाई करेंट अकाउंट इज ओपन कहीं ओपन करा जाए लिखिपार। नेक्स्ट सैक्रिफाइजिंग रेशियो कौन गेनिंग रेशियो कौन सिंपल फंडामेंटल जिनस ऑलरेडी ये सब जिनस गुड़िक प्लस 2 रे कवर अप करके आस। नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड कहले कौन बुझ। नेक्स्ट व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये जानी पार्छ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कौन पढ़ा पड़ो ओके। नेक्स्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओके। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबुतिक मेथड को पढ़ी जीव एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ता भीतर गोटे पर्टिकुलर भी तुमको मेथड पचारि दे पारे जमती एठार मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बट तुमको सबुतिक मेथड को कवर अप करके जीवार अच्छी। नेक्स्ट डिफाइन गुडविल गुडविल कहले कौन बुझ ओके। नेक्स्ट नेम 3 मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3टा मेथड ना लिख। नेक्स्ट व्हाट यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट कहले कौन बुझ नुआ जिनस आसला तुम या पढ़ी जीव।
What is the difference between dissolution of the farm and partnership dissolution? So dissolution of a farm and partnership dissolution कहले कौन बुझ दीटा भितर तीनटा रु चारिटा भितर बेसिक डिफरेंसेस लेखिबो. Okay. Next, bring out two important decisions of Garner versus Murray. Garner versus Murray रो जो कौन important decisions निया इथला ता विषय टिके लेखिबो पिले दुईटी मुख्य important decision विषय एक्सप्लेन करो कहिछि एवं Garner versus Murray insolvency chapter रो बहुत important part. Next, how do you close creditors account when all partners are insolvent? जेतବେଳେ समस्त पार्टनर insolvent हे जानती creditors account को केउ भली भाबरे क्लोज करा जाए. नेक्स्ट रेशियोज उपरु सिंपल क्वेश्चंस आसी पारे दीटा तीनटा पार्टनर थिबे गोटे पार्टनर जॉइन करिवो ये आटरु एतिकी नबो सेतिकी नबो से टाइप रो जो क्वेश्चंस गुडी को तमे रेशियोज रो ऑलरेडी सॉल्व करिछो +2 लेवल रे पार्टनरशिप रो तो ताकु टिके ओवरलुक करिकि जिवो. फाइन. आसीबा हमें लास्ट यूनिट को दैट इज यूनिट नंबर 4 जोडी तमे हायर परचेज अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओके ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग लीज अकाउंटिंग या विषय पढ़िबो बा पढ़ुचो. So what is first question? What is hire purchase system? Next, what is installment system? Next, what is stock and data system? Stock and data system in case of hire purchase system. तो hire purchase system रे गोटे मेथड अछि stock and data system एटा बहुत थरक परीक्षा रे आसीछि. Next, what is hire purchase price? Hire purchase price कहले कोन बुझो. Next, what are the main types of branches from accounting point of view? Explain करो accounting point of view different branches विषय रे. Okay. Next, give any three objectives of a branch accounting. तो branch accounting रे तीनोटी objective. How will you ascertain the remittance of cash? Remittance of cash को केमिति ascertain करिवो तो एगुडी को देखो जो पिला माने branch accounting एवडा सब पढुचो तो सेमानकर फंडामेंटली क्लियर थिबो जानि परथिबो क्वेश्चन कोठु आसीछि. Next, what is operating lease? Next, what is financial lease? दीटा वितर डिफरेंस टा very very important for the long question point of view जेटा मु मध्ये देइछि. Next, merits and demerits of financial lease, merits and demerits of operating lease. Next, stock and debtor method of a branch accounting. Branch accounting is stock and debtor method कौन? Next, what is foreign branch? Question mark. Next, what is mean by department? The departmental accounting रे department रो अर्थ कौन? Next, what are interdepartmental transfer? Interdepartmental transfer कहले कौन बुझो? Interdepartmental transfer, interdepartmental transfer. Okay. Next, what is dual pricing? Dual pricing कहले पिले कौन बुझुचो? Last not but the least, three differences between departmental accounting and branch accounting. एटा long question पे मध्ये बहुत पिले important. Okay. So ये किछि थिला तुमरो 2 and 3 marks probable question. वर्तमान हमें long question देखिबा. ओके फ्रेंड्स सो बर्तमान लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा याकू मध्ये मु यूनिट वाइज लिखि देछि. यूनिट नंबर 1 व्हाट इज अकाउंटिंग हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रांच बुक कीपिंग सॉरी so basically difference between bookkeeping and accounting very very important question. Next, discuss the advantages and limitations of accounting. Difference between cash basis and accrual basis of accounting एटा मध्ये परीक्षा रे बहुत थरा रिपीट हेता जो cash basis and accrual basis तो एगुडे को टिके कवर अप करिया पे चेष्टा करिवो. ओके. Next, briefly explain the different basis of accounting. तो basis of accounting रे cash basis, accrual basis and hybrid जोटा कि mixed basis तीनटा जाको explain करिवो. Next, explain about the concept and conventions of accounting. तो सबुतिक लेखिया दरकार नै से पर्टिकुलरली कहिथिबो केतोटी concept बा conventions को explain करो याको टिके भलो भाबरे पढिकी जिवो. बेले बेले कन्वेंशंस न कहि कि डायरेक्ट कहिथिबो जे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करो. ओके दीटा जे कि सेम क्वेश्चन प्रिंसिपल दीटा भाग रे विभक्त होइछि गोटे कांसेप्ट गोटे कन्वेंशन एटा को मने रखिबो. नेक्स्ट आसीबा हम यूनिट नंबर 2 देखो यूनिट नंबर 1 रो आउरी भी क्वेश्चन हेई पारे. ओके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हेई पारे बहुत गुडे क्वेश्चंस हेई पारे बट मु एतिक क्वेश्चंस इंपोर्टेंट भाबी कि रखिछि. नेक्स्ट, what is depreciation? Discuss the factors affecting depreciation. What about discuss about the different methods of charging depreciation, difference between straight line method and diminishing balance method. तो जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होइछि पिले मु से क्वेश्चन को रखिछि जोडा को बेसी रिपीट हेनी ताको मु एठारे लेखि नाही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रो पूरा एलिमिनेट कर देछि मु. ओके तो एटा को पढ़ी कि जाओ जेमति ले गोटे क्वेश्चन आसीबो एवं डेप्रिसिएशन रो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जदि तमे सॉल्व करि पारिबो देन बहुत बढ़िया कथा. बेले बेले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आसी जाए एवं चेंज ऑफ मेथड को टिके अधिक फोकस करिवो बिकॉज स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग तो ऑलरेडी +2 रे पढिछ. सो चेंज ऑफ मेथड प्रायतः क्वेश्चन टी आसी थाए.
नेक्स्ट सो एठी गोटे आउ गोटे लिखि देइथिबो डेप्रिसिएशन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चेंज ऑफ मेथड। ओके नेक्स्ट जीवा यूनिट नंबर 3 explain the meaning of capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure with examples। नेक्स्ट distinguish between capital देख तमें जदि लॉन्ग क्वेश्चंस गुडी को कवर अप कर देबो तमरो ऑलमोस्ट मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर अप हे जिवो। सो प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन को पढिबो। ओके एगुड़ाक देख जो वीडियो देखुची सेटा जानि परिबो, पीडीएफ देखिले से विचार आग पढ़िबा आरंभ करिबो होची शॉर्ट क्वेश्चन तापरे केबे जदि वीडियो देखिबो देन जानिबो जे सर फास्ट कहिथिले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा को। ओके नेक्स्ट distinguish between capital expenditure and revenue expenditure eta gote important question। discuss the situation when revenue expenditure becoming capital expenditure ए question मध्य पिले बहुत थर परीक्षा रे पडिची सो very important। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर कहले कौन बुझुच तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ए सब जिंस को एक्सप्लेन करिवो। व्हाट इज एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस इन ब्रीफ सम इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे एडजस्टमेंट कहले कौन बुझ किछि इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट गुडिक लेख। इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट रे तमे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर एगुड़ाक सब लिखिदे पारिबो। ओके जेकोसी अल्प लिखिदेव 5टा 6टा खंड लिखिदेव मु एतिकी कहली। नेक्स्ट व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन very important पिले। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फार्म एक्सप्लेन डिफरेंट नोट्स ऑफ अ डिसोल्यूशन एक्चुअली एटा नोट्स नुह मोड्स MODES मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ओके अच्छा एवं एई जो क्वेश्चन टी पिले रही डिसोल्यूशन ऑफ अ फार्म जोटा कि परीक्षा रे 100 रु 95 भाग आसीबार चांसेस रही। एते इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ अ फार्म जदि पार्टनरशिप रु कोनोसी थ्योरी क्वेश्चन आसे तो यूनिट नंबर 3 रु ये थिला किछि बेसिक्स थ्योरी क्वेश्चन तमे फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ए मेथड को भी पढ़ी पारिबो। एबे रहिला जो ए यूनिट रु प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोन कोन आसे तो ए एबे तमे जदि खाता पेन धरि कि बसछ ताले लिखि दियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रे तमे कोन करिवो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस 2 रे जो सब जिंस पढ़ी के आसीथिलो से सब जिंस को टिके पिले पढ़िबो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ए चैप्टर टी को टिके देखिकी जीवो। ओके तार जो बेसिक जर्नल एंट्रीज रही बाकी प्लस 2 पाठ को जेमती पढ़िथिलो डिसोल्यूशन पार्टटा जो रहिला ताकू भी टिके भलसे देखिकी जीवो। नेक्स्ट आसीबा यूनिट नंबर IV बा लास्ट यूनिट। सो डिफाइन लीजिंग एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग। देखो ए सब क्वेश्चन गुडा परीक्षा रिपीट हिची मु जोडा प्रोबेबल क्वेश्चन देइची। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज very important। okay and what are the situation when each type of such leasing agreement is suitable for the lease eta very important। distinguish between hire purchase system and installment purchase system that is also very important। परीक्षा रे बहुत थोर क्वेश्चन पिले थियोरेटिकल क्वेश्चन रिपीट होइछि। डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके तो एतिक होछि तमरो हायर परचेज एंड ऑपरेटिंग हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज बा लीज अकाउंटिंग चैप्टर यूनिट नंबर IV रु आसीछि। तो एतिक थ्योरी क्वेश्चन टोटल ऊपर तुम पढ़ी कि जीव अकाउंटिंग पेपर पाई ता बाद जदि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम शिखिच तो सब चैप्टर टिके टिके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे देखिकी जाओ बिकज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रे लॉन्ग क्वेश्चन रो पैटर्न अलग टाइप रो थाए। गोटे गोटे यूनिवर्सिटी टिके अधिक थ्योरी ऊपर फोकस करती, गोटे गोटे यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देई थांती। तो तुमको उभय आड़ प्रिपरेशन करके जीवाकू पड़िबो। जेहेतु ऑल ओडिशा पे मुटा प्रिपेयर करूची सो ओवरऑली मुटा तुमको कहीदेली। ओके तो तुम जदि एतिक क्वेश्चन भी पढ़ी कि जाऊच या भितर जदि गोटे भी क्वेश्चन भी न आसला दुख कर पिले किछि नाई तुम नॉलेज उपरे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ो। तुम एटलिस्ट एतिक तो खुशी हम जे तुम प्रत्येक चैप्टर भितर गोटे भल नॉलेज एक्वायर कर पारिछ। ओके सो बर्तमान तो मुझे तुमको विश करी फॉर द फर्स्ट सेमिस्टर फाइन एवं आगामी सेमिस्टर्स गुड़िकर वीडियो तुमको प्रोवाइड करी बस कनेक्ट होगी मो सहित रही था पिले। ओके सो आज वीडियो टी आम ये रखी आज वीडियो को मुझे रखुची देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन फॉर योर सेमिस्टर।